Okay, for question number 36, we have to study the following electric circuit diagram and answer the questions. तो ये closed circuit diagram है. This is the battery. Current is flowing in this direction. और यहाँ पे आपको डायरेक्शन देके देखिए. This is north, east, west, and south. And this is the compass of the needle that is deflecting towards the east side. तो what does the circuit diagram show? Circuit diagram में ये बताया गया है कि जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो we observe a deflection in the compass needle. So we have to write here does the electric what does electric circuit shows or electric circuit diagram shows. So this is in it it shows the deflection of a compass needle. और डिफ्लेक्शन तभी होगी when it is placed near a current carrying straight conductor or current carrying wire. When placed near the this is the observation, a current carrying straight wire. Okay, अब क्या पूछा है? What will happen if the direction of the current is reversed? Justify your answer giving circuit diagram. So if the direction of the current is reversed, the compass needle will deflect in the opposite direction. तो आप लिखोगे सेकंड के लिए और आपने डायग्राम भी बनाना है. if the जस्टिफाई करने के लिए if the direction of the current is reversed, the compass needle it deflects in the opposite direction. तो पहले ये ईस्ट में डिफ्लेक्ट हुई थी, अब डिफ्लेक्ट हो जाएगी वेस्ट की तरफ. It deflects in the opposite direction and we have to draw a सर्किट डायग्राम को दोबारा बनाना है और इसमें आपको बताना है कि ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हुई है. तो दिस इज द क्लोज्ड की क्लोज सर्किट और this is the battery, negative, positive, negative, positive, and negative, positive. Okay, after that, यहाँ पे this is not. लेकिन अब डिफ्लेक्शन तो दिखानी है, वो आपको दिखानी है वेस्ट की तरफ. तो अब ये नॉर्थ साउथ का पॉइंटर है और ये अब डिफ्लेक्ट हुई है. ये इसका डिफ्लेक्शन दिखा रही है आपको ऐसे वेस्ट की तरफ. तो दिस इज अ डिफ्लेक्शन दैट यू हैव टू शो दैट इट्स नाउ डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट. ओके, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है? Name and state the rule to determine the direction of the magnetic field associated with a straight current carrying conductor. तो रूल है आपका राइट हैंड थंब रूल और इसको डिफाइन भी करना है. तो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल. और राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर हम ग्रास्प करें पकड़े straight conductor in our right hand such that thumb points the direction of the current, then the direction with the fingers curl gives us the direction of the magnetic field. So it says that if we grasp a straight current carrying conductor in our right hand such that the thumb points in the direction of the current,
then the direction in which the finger goes gives us the direction of the current. Sorry, gives us the direction of the magnetic field. Then the direction with the finger curves gives us the direction of the magnetic field. ओके, ये हो गया। अब इसमें पूछा है, now we have to draw the pattern of magnetic field lines around a bar magnet and around a current carrying solenoid, और दो फीचर्स बतानी है, distinguishing features इन दो की magnetic field lines के बीच में। तो सबसे पहले let's draw the pattern। तो पहले हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे अराउंड द बार मैग्नेट। सो लेट दिस बी द बार मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड इमर्ज एट द साउथ, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड इमर्ज एट द साउथ। तो यहाँ से अपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू हैव टू इमर्ज देम। तो ये है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज करेंगे, अंदर को आएंगे, और यहाँ से बाहर को, ये अंदर, और यहाँ पे इमर्ज कर रही है। तो यहाँ इमर्ज हो रही है नॉर्थ पे, और साउथ पे मर्ज हो रही है। ओके, अब आपसे पूछा है, नेक्स्ट आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है दैट इज ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स। तो इसका भी पैटर्न वैसा ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जैसा कि एक बार मैग्नेट में है। तो अगर मैंने ये करंट कैरिंग सोलनॉइड बना दिया, इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है दे आर पैरेलल इक्विडिस्टेंट सेट ऑफ एरोस, और ये रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी क्लोज लूप्स बनाएंगी। सो दिस इज आल्सो फॉर्म क्लोज लूप्स। और ये भी एक एंड से इमर्ज करेंगी और एक एंड पे मर्ज करेंगी। तो जहां से इमर्ज करेंगी वो बन जाएगा नॉर्थ। सो दिस इज, और जहां पे मर्ज करेंगी वो बन जाएगा साउथ। सो दिस इज ओके। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसको यहाँ की भी बना देते हैं, लेट दिस बी द क्लोज्ड की। नाउ वी हैव टू, अब आपको दो देनी है डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इन दो की मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच। तो दो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपने बतानी है, एक बार मैग्नेट और दूसरा है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। So first one is the bar magnet, and second one is the current carrying solenoid। अब यहाँ पे जो बार मैग्नेट है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो है फिक्स्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड। अब करंट कैरिंग सोलेनॉइड में आप जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो आप चेंज कर सकते हो बाय increasing the current or by increasing the number of turns of the coil. The strength of magnetic field can be increased or decreased. So that is the first and foremost difference between the bar magnet and the current carrying solenoid. ये है पहला difference. So here the strength of magnetic field can be increased or decreased. अब second जो difference है दोनों की magnetic field में, वो है यहाँ पे polarity fixed है, मतलब north और south pole they are fixed. Here the polarity is fixed. यहाँ पे polarity fixed नहीं है, polarity can be changed by changing the direction of the current or by changing the polarity of the battery. So polarity can be changed.
मतलब आप नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ कैसे चेंज करोगे? बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा है, so two distinguishing features होगी। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग थ्री डायग्राम्स इन विच द एंट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक फील्ड इज शोन। तो आपको बताना है, बाय द केस इन विच द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट इज मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फोर्स, जो है वो मैक्सिमम तब रहती है जब आपका करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहता है। जब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहती है तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम रहती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर को, तो करंट की डायरेक्शन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इधर को है तो यू कैन 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो फोर्स जो है वो है मैक्सिमम, हियर द फोर्स इज मैक्सिमम। अब यहाँ पे जो है देयर सर्टेन एंगल, कुछ एंगल है, तो यहाँ पे आपको फोर्स जो मिलेगी वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि मॉडरेट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है। तो करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट लेंगे, तो यहाँ पे करंट और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो द फोर्स इज मिनिमम विच इज इक्वल टू जीरो। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम है आपके ए केस में। आप इसमें लिखोगे बिकॉज, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो आप लिखोगे फोर्स इज maximum in case A because electron is moving perpendicular to magnetic field, या आप लिखोगे of as direction of current is perpendicular to direction of the magnetic field। अब मिनिमम जो है वो सी के केस में है और मिनिमम कितनी, जीरो। तो आप लिखोगे फोर्स ऑन द कंडक्टर इज minimum in case C as direction of current is same as direction of magnetic field।